ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ، اور موضوع گفتگو وہی ایک افسوسناک سانحہ جو پرسوں شام میں رونما ہوا تھا، کل جس پہ دن بھر بات ہوئی ہے وہی ہے، اور ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ساری صورتحال کو کہ کیا وہ عوامل ہوتے ہیں یا وہ کیا جب تجاوز جو اپنے حدود سے کسی بھی ڈیوٹی میں کیا جاتا ہے، خصوصاً یونیفارم ڈیوٹی میں آن دا کاسٹ آف دا لائف آف اے سویلین، تو وہ کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب، آپ سے بات لیٹ 80s یا ارلی 90s کا مجھے یاد ہے، امریکہ میں ایک کالا تھا، روڈنی کنگ اس کا نام تھا، اس کی گاڑی کا کوئی پرابلم ہوا تھا اور کچھ پولیس والے اس کے پاس گئے تھے اور وہاں پہ کچھ ہیٹڈ ہوئے تھے، چونکہ وہ بلیک تھا تو وہ وائٹ تھے 3 یا 4 پولیس والے، تو انہوں نے اسے بہت مارا تھا زودو کو، بلکہ مر بھی گیا تھا۔ جان سے نہیں مارا تھا، جان سے نہیں مارا تھا، وہ اس زمانے میں موبائل فونز وغیرہ تھے نہیں کہ فلم بن جاتی، مگر کوئی ایک اسی طرح کا کوئی آدمی کیمرہ لیے ہوئے، کوئی ایمیچور تھا، ویڈیو کیمرہ لے کے کہیں جا رہا ہوگا، اس نے دیکھ لیا وہ پورا منظر اس نے، اور اس کے بعد امریکہ میں اگر آپ کو یاد ہو تو بہت برے فسادات بھی پھوٹ پڑے تھے کالے اور گوروں کے، جس میں لوٹا لاٹھی بھی بہت ہوئی تھی۔ اس کا ایک پہلو جو اچھا تھا وہ یہ تھا کہ اس ویڈیو کے بعد سوال اٹھنے ان کی اپنی سوسائٹی میں شروع ہو گئے، اور اس کے بعد پھر قوانین کو دوبارہ سے دیکھا گیا، ری ایڈریس کیا گیا، پھر وہ تمام قوانین بنے جس میں کہ نسلی تعصب سے لے کے اور ہر وہ چیز جس کی زد میں کہ ایک عام سٹیزن آئے وہ دوبارہ سے آئے، اور اس کے بعد پھر وہ منظر کبھی نہیں دہرایا گیا۔ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ میں اس کو پاکستان کے تناظر سے آپ کو ایک مثال دے دوں، اگر آپ کو یاد ہوگا 90s میں جب ملٹری آپریشن ہو رہا تھا سندھ کے اندر، بالکل اسی قسم کا ایک واقعہ انٹیریئر سندھ میں پیش آیا تھا۔ وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات آپ کو نظر نہیں آتا کہ کس کو کہاں پر یوز بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں پر لوگ اپنی دشمنیاں بھی اسکور کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی قسم کا ایک واقعہ انٹیریئر سندھ میں ہوا، جہاں پر آپریشن کرتے ہوئے ملٹری کے افسران نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، اور پھر جب آپ کو یاد ہو اس وقت آپ کا الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، وہ سندھی ریجنل اخبار نے ایک رپورٹ کیا، رپورٹ ہوتے ہوتے بالکل ثابت ہوا، اور جو کورٹ مارشل ہوا اور سزا پہنچی۔ دیکھیے وہ اس وقت ٹائم تھا کہ جب چیزیں تھوڑی سی اسٹیبل ہونے جا رہی تھی، بس وہ جاوید صاحب والی بات کہ ڈیموکریسی کو چلنے تو دو، خدا کے واسطے کبھی اس کو روٹ تو لے لیں۔ امریکہ کی مثال دیکھی جو ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ، اگر وہاں مولن صاحب حکومت کر رہے ہوتے تو ہم سے بدتر حالات ہوتے۔ آپ اور پھر دیکھیں جب 90s کے لیٹ 90s میں جہاں آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، ایک ڈیموکریٹک اپنے آپ کو اسرٹ کرنے جا رہی ہے، آپ نے بالکل بڑے دھڑلے سے بدنام کر دیا کہ جی 2/3 تھا، یہ تھا، 2 آرمی چیف کو ہٹا دیا۔ نو پرابلم ایٹ آل، دس از اے پروگریٹو آف اے سول گورنمنٹ ٹو ڈیسائیڈ ہو شوڈ کنٹینیو۔ اب ہمیں پچھلے سال نظر آتا ہے کہ افغانستان میں کمانڈ چینج نہیں کی گئی، دس از اے پریزیڈنٹ اوباما ہو ڈیسائیڈڈ وداؤٹ اینی۔ اوباما اس لیے کر سکتے ہیں کہ کانگریس کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اوباما کو عوام نے الیکٹ کیا ہے، تو یہاں پہ بھی تو ہمارے وزیر اعظم کو عوام نے الیکٹ کیا ہے۔ الیکٹ ہونے کے باوجود یہ لوگ جو ہیں اپنے مفادات، نیشنل انٹرسٹ یا عوام قوم کے لیے تو کچھ نہیں کرتے، ہمارے سیاستدان اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کل بھی ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ جاپان میں اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، انہوں نے تبدیلی کے لیے اپنے اے سی بند کر دیے، انہوں نے اپنی انرجی کرائسس پہ قابو کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے، سادگی اپنا لی ہے، اپنی لگژریز بند کر دی ہیں۔ وہاں کی پرائم منسٹر نے خود آ کے عوام کے ساتھ مل کے وہی کام کیا جو عوام کر رہے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ہمارے ملک میں پرائم منسٹر یہ کر سکتا ہے جس کا ایک سوٹ جو ہے لاکھوں میں ہو؟ نہیں دیکھیں آپ ہمیں کبھی کر سکتے ہیں، ہمیں کبھی رول ماڈل بننا پڑے گا، انہی لوگوں کو بننا پڑے گا، رول ماڈل رول ماڈل بنائیں گے تو آپ کو بیسس بدلنی ہوگی۔ جاپان کے کانسٹیٹیوشن کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو امریکن نے اس جہاز پانی پہ لکھ کے دیا تھا، لائک امریکن کانسٹیٹیوشن، وہ اڈاپٹ کیا، وہاں پہ سیکولر گورنمنٹ ہے۔ دیکھیے ایک بات کروں جاپان پہ، آپ نے بہت اچھی بات کی، ذرا آگے بڑھا دوں۔ بالکل صحیح ہے کہ اس شپ کے اوپر میکارتھر نے کانسٹیٹیوشن دیا کہ آپ کریں گے، مگر آپ نے یہ دیکھا کہ جاپانی جو حکمران تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تو کمال کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہیروشیما ناگاساکی ایک شکست کی ڈاکیومنٹ، ایک غیر کا دیا ہوا آئین، سب کچھ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم اپنے آپ سے پلیج کرتے ہیں 3 چیزیں۔ سب سے پہلا اپنے عوام سے جھوٹ نہیں بولیں گے، سب سے دوسرا تعلیم کے نام پر
हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और ठीक है। तीसरा हाँ। फ्यूडल सिस्टम खत्म वो कर खत्म देंगे। करेंगे, ये और फिर- 3 बुनियादें जिस पर आज जापान खड़ा हो गया। नहीं तो क्या आज जिस जगह जिस बहरान में हम खड़े हैं, पाकिस्तान जिस कंडीशन में खड़ा इस है, तरह से जो अंजुम कह रहे हैं, इस तरह से आप अपने से वादा करें कि व्हाट टाइप ऑफ स्टेट यू वांट इस्लामिक स्टेट, यू वांट टू रूल द होल वर्ल्ड, और आप जैसे किसी ने कहा कि हम खुशहाली को भी कुर्बान करेंगे नेशनल सिक्योरिटी स्टेट पे। ठीक। अगर ये आपके अहदाफ है तो ये चलता रहेगा। ठीक है। आपको अहदाफ, जैसे अंजुम साहब ने बताया, जापानीज कौम ने जिस तरह अपने से किया, आज उनका आलम है कि वो सबसे बड़े दाई हैं कि भाई दुनिया से एटम बम खत्म करो। सर एक चीज मुझे चाइनीज एक कहावत याद आ रही है कि जिस तरह के बहरान होते हैं उन बहरानों में लीडरशिप पैदा होती है। तो शायद ये हमारे यहाँ जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये तब्दीली की एक हवा है, ये तब्दीली का एक पेशगामा हो गया है, ये वाकया जो कल का हुआ है। नहीं, ये आप कह लेकिन- सकते हैं, मगर आपको ये बता दूं कि इस मुल्क में जहाँ 250 बरस तक एक चंद गोरे आके हुकूमत कर, और जिन्होंने हमें सिविलाइज किया, आप भी आज जिस तरह से बातें कर रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ दी ब्रिटिश। हम 1861 के तो सीपीसी और ये सारे कानून चल सर रहे हैं। बात ये है कि इसमें- ब्रिटिश इसमें- नहीं मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि ब्रिटिश ने किया, लेकिन वही ब्रिटिश ने वो लाज कहां से लिए हैं, वो कानून हम जो ब्रिटिश ला रहे हैं वो कहां से हैं? वो तमाम उन्होंने भी तो इस्लाम से अडॉप्ट किए हैं ना देखिए, सर। देखिए, चलिए फिर आप डॉक्टर साहब से उसमें- बहस की बात नहीं। आप- अच्छा, हम करेंगे, नहीं हम करेंगे। तारिक हम गुफ्तगू कहीं और ले गए ना, हम लेके आ रहे हैं इसी हम ये स्फीयर में। हाँ। डॉक्टर साहब आप कुछ फरमा रहे देखिए, थे। मैं कह रहा था कि सबसे बड़ी जो आप बात कर रहे हैं कि जी लीडरशिप आएगी और लीडरशिप ये सब कुछ करेगी, तो लीडरशिप का जो प्रोड्यूस होना है वो इंडिजीनियस अमल होता Indigenous अमल है। है। इसे आप कंट्रोल तरीके से नहीं ये- कराते। ये। अब आप कंट्रोल नहीं कर नहीं सकते, कर सकते। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ, जी, जी, हर जिसके जगह बिना हुआ। पर लीडरलेस एक फेज आएगा, उसके रेवोल्यूशन। बाद अगला फेज आएगा, एंड देन यू थिंक कि बोर्जुआ अमल से फ्रेंच रिवोल्यूशन, ऑल रिवोल्यूशन, वो इंडिजिनस commune यानी कौम खुद एक लीडर बना देखिए, देगा। हमारे में तो ये है कि हम अपने हीरोज को मार रहे हैं, जी, अपने हम- हीरोज को वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हीरोज की कौमों को जरूरत नहीं होती, कौमों को अपनी No, आवाम को we अपनी need तारीख heroes. खुद बनानी लीडर्स की चाहिए। तो जरूरत है ना, विजनरीज की तो जरूरत इसलिए मैं है। आपको आप बता दें, यूरोपियन स्टेट्स के भाई तारिक भी जर्नलिस्ट हैं या और सिविलाइज स्टेट, एक दो को छोड़ के उनके सरबराहों का नाम तो जरा बता दें। बताइए, क्या नेपोलियन सबसे No, बड़ी no, हीरो था, सबसे बड़ी शिकस्तबाज नहीं था? लेकिन वो सर तो लोग आप नहीं- नहीं, सही तो कहा फिर क्या हम I इन्हीं agree. फ्यूडल से इन्हीं चीजों से निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। सिस्टम चलने दें, देखिए निकलेंगे। मैं सर एक उसके बात बाद बोलता इसी हूं। सिस्टम में रहते हो, इन्हीं सियासतदानों की औलादें आगे आगे निकालेगा, हुकूमत कर मैं रही हैं। आपको निकालेगी। जी मैं फौज ने, मैं बता दूं, जी, जी। ये पिछले 50 साल की तारीख में फ्यूडल ऑटोमेटिक खत्म हो रहे थे, और आज भी बता दूं जी। कि अच्छे खासे 25-30% से ज्यादा नहीं रह गए, ये सब फौज पे कंधे पे सवार मैं- होते हैं। मैं एक जी, 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 बलूचिस्तान में थोड़ा सा। जी, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं। 90 सरदारों में ये मुशर्रफ ने कहा था कि एक अकबर बुकटी है, बाकी तो सब मेरे साथ हैं। तो आप तो पालते रहे हैं आप इन लीडरों को, जब ये बड़ों को। हमारा बिल्कुल, जी, डॉक्टर साहब। 47 में हमारा मुल्क बना, कानूनी तौर पर 51 में हम इलेक्शन करानी चाहिए तो नहीं करा सके। क्या हुआ, 55 के नतीजे सामने आए। हमने कहा जी 70 का इलेक्शन पहला साफ और शफाफ इलेक्शन था, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपसे एक बात करूंगा कि 70 के इलेक्शन से पहले होना क्या था, कौन सी इंडिजिनस लीडरशिप हमारे पास सामने आ रही थी। मशरकी पाकिस्तान से आपके पास शेख मुजीब तो नहीं आ रहे थे, जी, मौलाना भाषानी थे, जी, बहुत से जो थे। एंटी फ्यूडल लोग थे, सबसे बड़ा जो हमारे पास उन्होंने यहाँ अपने यहाँ खत्म कर जी, दिया था। और हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान में कौन सी लीडरशिप आ रही थी, वो लीडरशिप जो प्रोग्रेसिव थी, जो लीडरशिप वाकई रूट रखती थी सारे सूबों के अंदर। Exactly. आपने उस सबको कंट्रोल किया, और उस वक्त तक कंट्रोल किया, उस वक्त तक मैनेज किया, जब तक कि दोनों मुल्क के हिस्सों में वो लीडरशिप सामने ना आ जाए जो कि शायद बाद में जाके इस मुल्क के फेडरेशन को बरकरार ना रख सके। एक और सबसे बड़ी बात वही कि फ्यूडल रिलेशन को बरकरार रखा गया और है। जब इंश्योर हो गया तब आपने इलेक्शन कराया। और वही बात वही होगी, बिल्कुल आखिरी 1 मिनट है प्रोग्राम का। मैं जी। चाहूंगा कि चूंकि अब हम जिस प्रोग्राम को जिस जहां से शुरू किया था उसी तरफ आए कि अब अगर ये लोग जो जिनका आज रिमांड हुआ है रेंजर्स वालों का, और जिन लोगों को अभी बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, जो बिहाइंड द कर्टन जो लोग हैं, अगर उन सबको सही उनका ट्रायल हो गया, उन सबको सही इंटरोगेट हो गया, तो डेफिनेटली इस वाक़े के बाद पाकिस्तान में यकीनन वो तब्दीली आएगी जो हमारे लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत अच्छी तब्दीली साबित जब होगी। जिस तरह सारे पॉलिटिकल अदारे डॉक में होते हैं, हार्वर्ड डॉक में होते हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी कोई इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए कि डॉक में हो, ताकि उनका हाउस भी इन ऑर्डर है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अकाउंटेबिलिटी इज मस्ट। ये नहीं है कि चंद रोग एलिमेंट नहीं ना, पैदा। ये तो एक पूरा ये तो पूरा माइंडसेट आ गया। मगर सबका एहतसाब और करप्शन का खात्मा और एहतसाब, ये वो- दो चीजें वही- वो करने हर जगह वही वाली बात आ गई
वाकई जैपनीज की जो उनकी जी, लीडरशिप आप है, उनके शहंशाह ने कहा था, बिल्कुल आखिरी 1 मिनट था, मैंने कहा प्रोग्राम को खत्म जी, करें, जी। दोबारा से आवाम के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए इसको रिपीट करते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी 2 एटम बम खाने के बाद वो कौम जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उसका आइन एक बहरी जहाज पे जनरल मैकार्थर ने हवाले किया, इन द इमेज ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने अपनी कौम से अभी 3 वादे किए, जी। अपने आप से 3 वादे किए कि एक, हम अपने आवाम से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और एक, तालीम पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और तीसरा, फ्यूडल सिस्टम्स खत्म कर देंगे। सर हमें भी तो, सर हमें हिरोशिमा नागासाकी से ज्यादा तबाही हो चुकी है। जैसे अमेरिकन देखे गया, हमें भी 1935 का एक्ट अंग्रेज देखे गया सर? और इंडिया उस पे अमल पैरा होते हुए आज हमसे तो बेहतर है ना। सर, हमारे पास अभी तो जापान के साथ ये हो गया कि हिरोशिमा नागासाकी से ज्यादा तबाही हो चुकी है, और लेकिन आपने डिसिप्लिन देखा, डिटरमिनेंट लोग हैं, उन्होंने अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। आपने उस कौम का माइंडसेट देखा, भाई कमाल हो गया, लोगों ने ग्रोसरी पहनना छोड़ दिया। नहीं, ग्रोसरी सिर्फ वो खरीदी जो कि अल्टीमेट उस वक्त की जरूरत थी, ये नहीं था कि ओवर स्टफ करते। दुकानदारों ने वॉलंटियरली कीमतें घटा दी, बिल्कुल। किसी ने वहां हुकूमत वक्त को बुरा भला नहीं कहा कि हमारे हुकूमत सवाल है, ये नहीं किया। लोगों ने जो आटा था वो 500 रुपए किलो बेचा है हमारे यहाँ। अंजुम साहब, सबसे बड़ा एलिगेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम पर है वो करप्शन का है, कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, गवर्नेंस। मैं आपसे एक सिर्फ बात कर लूँ कि हम CSF का एक फंड का जब रीइंबर्स करने के लिए कुछ अकाउंट्स देते हैं, पहले अमेरिकन बड़े कम कर्ज लगाते थे, इस पर पता है आपको कितने कर्ज लग रहे हैं? 40%। एंड व्हाट दे आर सेइंग कि इट्स दीस आर टेम्पर्ड फिगर्स, यू आर नॉट डूइंग अ ट्रांसपेरेंट फिगर। इसका मतलब वो उबारा सबसे बड़ा जिस पर आप बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ फुटेज जो है ना, ये पूरे दुनिया में हमें बदनाम नहीं कर रही, हम ये भी कर रही है और ये चीजें भी कर रही है जो रियाज साहब कह रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया सर, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी, मगर जी जा रहा था आगे बढ़ाएं, वो प्रोग्राम का वक्त ही खत्म हो गया, वक्त का पता ही नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीकी साहब आपके तशरीफ लाने के, डॉक्टर रियाज शेख साहब बहुत शुक्रिया, मियां तारिक साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी सैरासल गुफ्तगू रही, और बिल्कुल जो मंतज हो रही है कि शायद इस एक वाक़े से, या यूं कह लीजिए कि एक सिविलियन की कुर्बानी से या एक सिविलियन पे ज्यादती से अगर ऐसे कवानीन बन जाते हैं, अगर इस तरह की चेक एंड बैलेंस, अगर इस तरह अदलिया उनको इंसाफ की फराहमी को ट्रांसपेरेंट करके उनको करार वाकई सजा देती है, तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्तक़बिल में फिर कई लोगों की जानें भी बच सकती हैं, और यही जो लोग हैं वही दोबारा से हम उस माइंडसेट में आ जाएं कि शायद ही हमारे महाफिज़ ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू थी, वक्त खत्म हो गया, महासिल है, बिला तबसरा गुफ्तगू है, हमने खुल के बात की और सारे अवामिल पे सोचा, और हमने ये कोशिश की कि अपने मोहतरम मेहमानों से ये कहें कि इस पूरी सूरत हाल का तज़िया करके दिखाएं। तज़िया आपके सामने, सोचते आप भी रहिएगा, सोचता मैं भी रहूँगा, क्योंकि मैं भी इस पाकिस्तान को इतना ही मजबूत देखना चाहता हूँ जितना कि कायद आज़म देखना चाहते थे, जितना आप देखना चाहते हैं, जितना मेरे बच्चे देखना चाहते हैं, क्योंकि ये हम सब का एक ख्वाब है, इस ख्वाब से हमें जुड़े रहना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, जज़ा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब